Evening all. Let's continue with chemical kinetics. And in our last lecture, we had started with collision theory. Now, collision theory tells us that rate of reaction is directly proportional to number of collisions occurring per unit volume per unit per second. Okay. And number of collisions can be given for a reaction like this. A plus B giving us C, giving us P. For this kind of reaction, number of collisions can be given as एन ए का स्क्वायर. ठीक है, ए क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्यों नहीं लिख रहे हम लोग? बिकॉज यहाँ पे ए मतलब ये ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे लग सकता है. तो एन का स्क्वायर, ठीक है, एन टू ए इंटू बी. याद रखो, एन स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23. नाउ गाइस, ये हम लोगों ने पहला देखा था, बट देन वी फाउंड आउट दैट ऑल collisions are not effective collisions. ठीक है, so we figured out that number of effective collisions, number of effective collisions, number of effective collisions is equals to e raised to minus ea upon rt. ठीक है, these are number of effective collisions. So rate can be defined as number of collisions occurring per unit volume multiplied by fraction of molecules having energy equal to EA, where EA is what? EA is activation energy. But then too we figured out that not all collisions having effective energy, okay, फिर activation energy are not successful. Why? Because one more parameter is there, which is orientation factor. Okay, which is orientation factor. Orientation factor. So we put down that rate is equals to E into Z is what? Z is n square into A into B multiplied by e raised to minus EA upon RT. ठीक है, and guys, similarly for a elementary reaction, if we are assuming that this reaction was elementary, ये एक just short में revision है. ठीक है, if we are assuming that this reaction is elementary, then we can write that for a elementary reaction, rate is equals to K A raised to 1 B raised to 1. Because for elementary reaction, order is equal to stoichiometric coefficient. तो इनके रेस टू में भी stoichiometric coefficient 1 1 आ जाएगा, order 1 1 हो जाएगी. And from analyzing these two equations, we can derive that K is equals to P into n square into e raised to n square into e raised to minus EA by RT, and this is how we can derive Arrhenius equation that K is equals to A into e raised to minus EA by RT. Now guys, this equation is called as Arrhenius equation. ये इसकी प्रॉपर डेरिवेशन ऐसे बोल नहीं सकते, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन बहुत अलग है, बट एक तुम लोगों को बेसिक आइडिया मिल जाती है इस डेरिवेशन के थ्रू. ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय अरेनियस. ठीक है, एंड उन्होंने इसकी डेरिवेशन नहीं की, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला हम लोगों को दिया था, व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट. अरेनियस इक्वेशन. ठीक है, एंड ओवर हियर A is called as Arrhenius constant. Arrhenius constant, also called as pre-exponential constant. Exponential. P is called as probability factor. ठीक है, orientation factor or else probability factor, that if the molecules are oriented properly or not. What is the probability of molecules being oriented properly? ठीक है. Okay. Now guys, today now we are starting with our proper chapter. ठीक है, revision is over. So let's start with Arrhenius equation. Okay. Let's start with Arrhenius. Yes. So what did Arrhenius do?
Arrhenius ने अलग अलग सी Arrhenius wanted to find a relationship between rate constant and temperature. What he wanted to do, he wanted to find relation between rate constant rate constant K and temperature T. ठीक है. So guys, Arrhenius wanted to find relation between rate constant K and temperature T. So what he did, he at different temperatures, he figured out rate constant for reactions. ठीक है. If we are studying, I'm just giving you a basic idea. ठीक है. So if we are studying a relationship like a reaction like this, A plus B giving us P. ठीक है. So at different temperatures, he figured out what is the value of K. ठीक है. So if temperature is T0 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, या फिर T1 लिख देते हैं, कुछ लोगों को T0 से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो T1, T2, T3, T4, T5, at these kind of different values, he figured out what is the rate constant K1, K2, K3, etc., 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 K4, ठीक है, K5, K6, like this, ठीक है, and then he started to figure out what is the relationship between them. ठीक है, he started to figure out that what is the relationship between them. अब मुझे बताओ दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन कैसे फिगर आउट करते हैं. मैं तुम लोगों को एक जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. ठीक है, तो दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन हम लोग कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, इजी मैनर में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं. रेशियो लेके तो रेशियो से कुछ रिलेशन नहीं आया. गाइस बेस्ट मेथड इज, मतलब बेस्ट नहीं बोल सकते बट वन ऑफ द मेथड इज टू प्लॉट ग्राफ ऑफ इट. देखो मैं तुम लोगों को एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को डिराइव करनी है विदाउट एनी थियरी, विदाउट एनी थियोरिटिकल बैकग्राउंड, अगर हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली वो फिगर आउट करना है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक ग्राफ. तो लेट्स प्लॉट ए वर्सेस टी. उन्होंने देखा ये ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की, बट ही फाउंड आउट दैट graph is coming something like this. Is there any relationship? Is there any relationship? No, there was none. ठीक है. So ऐसे अलग अलग ग्राफ हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टाइम हम लोगों ने की स्क्वायर कर लिया, समझ लो की स्क्वायर करके देखा, स्टिल ग्राफ वॉज कमिंग लाइक दिस, इट इज नॉट एप्लीकेबल. सो की स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर करके देखा होगा, स्टिल ग्राफ वॉज नॉट कमिंग. देन ही माइट हैव ट्राइड 1/t, then also graph was not there. Then he tried ln of k. Then he tried ln of k. And guys, at that time, he got a graph like this. At that time, he got a graph like this. देखो ये तुम लोगों को अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब sorry. At that time, he got a graph like this. Now guys, tell me, can you find a relationship between them? देखो ये था 1/t1, 1/t2, 1/t3. So is there a relationship? Yes, there is a relationship. So from this graph, what we can derive? From this graph, we can derive that ln of k is inversely proportional to. guys समझ में आया? From this graph, we can derive that ln of k is inversely proportional to temperature, and then we can say that ln of k is equals to some constant k अपॉन, कांस्टेंट के नहीं लिखते, सम कांस्टेंट सी अपॉन टी, ऐसा कुछ. एंड फिर बैक कैलकुलेशन करके उन्होंने हम लोगों को इक्वेशन दी. आर यू गेटिंग इट? एक बेसिक आइडिया आ गई, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. तो गाइस वाज द बेसिक प्रिंसिपल. ठीक है, अब हम लोगों को ये सब देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला लिखने की जरूरत नहीं थी. अरेनियस ने हम लोगों को डायरेक्टली उनकी इक्वेशन दे दी. इक्वेशन वाज के इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू e raised to minus EA upon RT. ठीक है, this was the equation. Okay, and now guys ये इक्वेशन जो है इसे हम लोगों को मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक एक्सपोनेंट का ln, लॉग लेने वाले हम लोग. ठीक है, तो गाइस लॉग अगर लेंगे तो टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन, टेकिंग natural log of equation, ln of equation. So what I will get, ln of k is equals to ln of a
इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब गाइस मुझे बताओ, मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग लॉग को क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग लॉग में एडिशन करते हैं। तो ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। गाइस लॉग में जो पावर वाली टर्म रहती है वो हम लोग नीचे ला देते हैं। तो वी विल गेट ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस, ये माइनस नीचे आ गया तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ई ए अपॉन आर डी ln ऑफ e। एंड गाइस वी ऑल नो दैट, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं चाहिए तो, सिंस ln ऑफ e, since ln of e is equals to 1, ln of e is 1, so we will get ln of k is equals to ln of a minus ea upon rt। अब गाइस ln वर्सेस t का ग्राफ हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, देखो कैन यू सी इट? ln का ग्राफ हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। तो चलो पहले बता देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो ln of k is y, इसको थोड़ा सा अलग मैनर में लिख देते हैं, ठीक है? तो this can also be written as ln of a, sorry, ln of k is equals to ln of a minus ea upon r into 1 upon t। देखो ग्राफ में ही तुम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ठीक है? मैंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं है इसे, बट हाँ इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनती है। तो गाइस अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे गाइस लॉग लिया है, हम लोगों ने सिर्फ इसको लॉग लिया है, ठीक है? इसका लॉगरिथम ले लिया है, ठीक है? So over here, ln of k is y, 1 upon t is x. So this one will become m and this one will become c. Y is equals to c plus mx. अब guys m जो है वो नेगेटिव है मतलब इसका स्लोप ऐसे नीचे की तरफ जाने वाला है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे बाजू में इक्वेशन की मैं ग्राफ बना देता हूँ सो दैट इट विल बिकम मोर इजियर, मोर क्लियरर। लीनियर ग्राफ आएगा, करेक्ट बोल रहा हूँ। तो गाइस दिस ग्राफ इज of ln of a versus 1 upon t, ठीक है? And nature of graph is with a negative slope, ठीक है? Over here this point is ln of a and slope of this graph is minus ea on r, ठीक है? अब गाइस मुझे बताओ, इक्वेशन तुम लोग ln में स्टडी करना प्रेफर करते हो या लॉग में स्टडी करना ज्यादा प्रेफर करते हो? इस इक्वेशन को ln में रख के अपने कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब वी प्रेफर स्टडिंग इक्वेशंस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस इसे लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ln वाले टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। 2.303 log of k, log to the base 10 k is equals to 2.303 log to the base 10 a। अब गाइस यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? देयर इज नो नीड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लॉग है ही नहीं, माइनस ई ए अपॉन आर टी। याद रखो लॉग को ln में कन्वर्ट करने के लिए 2.03 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ गाइस देयर आर टू टर्म्स हैविंग 2.303, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड थ्रू आउट बाय 2.303 एंड डिवीजन अगर करेंगे तो यहाँ पे 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल गेट log ऑफ k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी गाइस log ऑफ k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 2.303 कैंसिल आउट हो गया, log ऑफ k इज इक्वल्स टू log of a minus EA upon 2.303 into, चलेगा ये 1 अपॉन t मैंने थोड़ा साइड में निकाल दिया। नाउ गाइस अगेन इसको साइड में निकालने का रीजन, y इज इक्वल्स टू m x प्लस c, इक्वेशन बन रही है। अच्छा मैं r भूल भूल गया, यहाँ पे r लिखना भूल गया, ठीक है? तो गाइस एग्जाम में ये दो टाइप के ग्राफ आ सकते हैं, एग्जाम में ये दो टाइप के ग्राफ हम लोगों को आ सकते हैं, गेटिंग इट? एक ग्राफ आ सकता है log ऑफ k का, log ऑफ k वर्सेस 1 अपॉन टी,
एंड दूसरा ग्राफ आ सकता है तुम लोगों को ln k वर्सेस 1/t। अब गाइस log ऑफ k और ln k, इनमें डिफरेंस क्या है? log ऑफ k में इंटरसेक्ट जो आएगा वो रहेगा log ऑफ a, एंड स्लोप जो रहेगा वो रहने वाला है e a अपॉन 2.303 इंटू आर। दिस इज द डिफरेंस गाइस। देखो एंड लिखो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछो। माइनस ग्राफ शुड बी माइनस, करेक्ट बोल रहे हो, नेगेटिव आना चाहिए था। यस गाइस, राइट इट डाउन फास्ट। कंप्लीट हो जाए तो मुझे मैसेज सेंड कर देना। ग्राफ इज टचिंग एक्स एक्सिस, इट कैन डेफिनेटली टच एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ नहीं है, बट वेयर इट कैन टच, ठीक है, व्हेन इट कैन टच एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कब टच कर पाएगा बताओ जरा। ये एक्स एक्सिस को टच करेगा इन्फिनिटी पे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिटी पे टच करेगा जब, एंड इन्फिनिटी हम लोग कभी रीच नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये यहाँ पे हाफ वे में हम लोगों ने छोड़ दिया है, करेक्ट बोल रहे हो। तो जिनको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है उनको ये क्लिक हो जाएगा कि यार हम लोग 1/t प्लॉट कर रहे हैं, एंड 1/t जो है वो जीरो कब होगा, 1/t जीरो कब बनेगा, 1/t जीरो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिटी पे ही बनेगा, टेम्परेचर इनफाइनाइट होना चाहिए। एंड गाइस 1/t नीचे कब टच होगा, व्हेन 1/t इज इन्फिनिटी, ठीक है, मीन्स t इज इक्वल टू जीरो, एंड t जीरो हो नहीं सकता। हम लोग टेम्परेचर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या, तो 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन वो बना सकते हैं, बट टी जीरो हो सकता है क्या, टी जीरो नहीं हो सकता। या इनसाइड सन 6000 केल्विन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम लोग टेम्परेचर इनफाइनाइट कर सकते हैं, मतलब बहुत हाई लेके जा सकते हैं, बट टेम्परेचर जीरो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। ओके, चलो कंप्लीट दिस फास्ट। चलो गाइस, लिख के हो गया। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ गाइस। नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को जरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेने वाला हूँ। रिटन फॉर्म में नहीं, मैं मतलब मेरे पास क्वेश्चन जो है वो रिटन फॉर्म में, बट मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। कि जिन लोगों का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, जिन लोगों को ग्राफ्स बहुत अच्छे से समझ में आता है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में समझ लो तुम लोगों को ऐसा एक ग्राफ दे दिया, ln ऑफ के वर्सेस 1/t। रिसेंट में ही मैंने तुम लोगों को ये जस्ट अभी टॉपिक पढ़ाया है, तो शायद से तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ठीक है। इफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इफ
intercept on y-axis is 5 and slope of the graph is -20. देन फाइंड, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है guys, ठीक है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है. देन फाइंड 1 EA and 2 A, ठीक है guys. Intercept on y axis means what? This point is 5 and slope means what? Slope of this graph, slope of this graph is minus, ठीक है. हाँ, तो अब तुम लोगों को सारी वैल्यूज निकालनी है, नथिंग एल्स. बताओ चलो जल्दी. ओके, उन्नति करेक्ट आंसर है एंड श्रेया आपका भी आंसर करेक्ट है. बस दो लोगों के आंसर आ रहे हैं क्या? ओके, समीक्षा करेक्ट आंसर है. समीक्षा कदम करेक्ट आंसर है. रेस्ट ऑल ऑफ यू. ओके, ई ए को कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी ए को फिगर आउट करने के लिए. तो फाइंड ई ए इन कैलोरीज. चलो फाइंड ई ए इन कैलोरी, थोड़ा इजी कर देता हूँ. हाँ, कुछ लोगों को ई ए में थोड़ी तकलीफ आ रही होगी तो इसलिए यूनिट मैंने फिक्स कर दिया. ई ए फाइंड आउट करो कैलोरीज में. Guys, अगर कुछ दिया नहीं होगा उन्नति करेक्ट आंसर है. अगर कुछ दिया नहीं रहेगा तो तुम लोग आर को आर ही लिखना, ठीक है. श्रेय करेक्ट आंसर है. तो गाइस एकदम इजी है. देखो ये ग्राफ अगर तुम लोग ये फर्स्ट ग्राफ के साथ कोरिलेट करोगे तो ln ऑफ a इज इक्वल्स टू 5. ln ऑफ a इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस गाइस, ठीक है. तो पहले हम लोगों को ये निकालना है. चलो मैं अभी एक ही बात किया मैंने तो इसलिए मैं एक ही तरफ चल जाता हूँ. तो ln ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 दिया बराबर. अब गाइस तुम लोगों को ln को निकालने के लिए एंटी ln लेना पड़ेगा. एंटी ln मतलब क्या रहता है? एंटी ln मतलब ई रहता है. एंटी ln ले लो गाइस. a इज इक्वल्स टू एंटी ln इज व्हाट? ई रेस टू दिस नंबर, तो ई रेस टू 5. एंड यहाँ पे जब हम लोगों ने एंटी ln लिया तो ln एंटी ln कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज योर आंसर. ऐसा ही रहेगा. ई रेस टू 5 की वैल्यू तुम लोगों को एग्जाम में दी रहेगी. रश्मि करेक्ट आंसर है, ठीक है. नाउ गाइस थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड आता है ना. तो ई ए की वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए एंड ई ए, देखो यहाँ पे स्लोप देके रखा है एंड स्लोप फॉर ग्राफ ऑफ एल एन इज माइनस ई ए अपॉन आर. गाइस स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर. स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू -20. तो देखो यार ये 20 और ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया. ई ए इज इक्वल्स टू 20 इंटू आर. मैंने क्या बोला? अगर एग्जाम में यूनिट मेंशन नहीं होगा तो हम लोगों को 20 आर ऐसा आंसर दिया होगा. ऑप्शन में 20 इंटू आर मतलब 20 आर ये भी हो सकता है. बट नाउ सिंस आई हैव मेंशन्ड द यूनिट व्हिच इज कैलोरीज, तो इट विल बिकम 20 इंटू 2. आर की वैल्यू कैलोरीज में हम लोग 2 पकड़ते हैं व्हिच इज एक्चुअली 1.987 या फिर 1.984 समथिंग लाइक दैट. इट विल बिकम 40 कैलोरीज. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. देखो ग्राफ कुछ लोग इसके साथ कंफ्यूज हो रहे हैं. दिस ग्राफ इज फॉर लॉग. ये लॉग वाला ग्राफ है. क्वेश्चन में एलएन वाला ग्राफ. डाउट गाइस? चलो होपफुली ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है आगे बढ़े. चलो नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज अरेनियस इक्वेशन. अभी तक खत्म नहीं हुई है. वेरिएशन ऑफ के विथ टेम्परेचर. ओके, तो गाइस दो अलग अलग टेम्परेचर पे के की इक्वेशन क्या रहती है. और ये सेम इक्वेशन के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं. जब मैं डिराइव करूंगा तो लोगों को आइडिया आ जाएगी शायद से ये हम लोगों ने कहाँ पे किया था. देखते हैं किस किस को याद आता है. तो गाइस टेम्परेचर वन
इसे हम लोग बोलेंगे T1 एंड टेम्परेचर 2 इसे हम लोग बोलेंगे T2। ओके, तो गाइस एट T1 देखो हम लोगों की इक्वेशन क्या है, हम लोगों की इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू A इंटू ई रेस टू माइनस ये अपॉन टी। ठीक है, तो गाइस टेम्परेचर T1 पे हम लोग बोलेंगे कि भाई K की वैल्यू जो है वो हम लोग अज्यूम करेंगे K1। A गाइस A इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आगे लिख दो A इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, एंड गाइस EA is also EA, that means it is temperature independent। टेम्परेचर चेंज करने से EA will not change। ठीक है, एंड सिमिलरली यस वैष्णव करेक्ट बोल रहे हो। नाउ गाइस सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, K is equals to K2, A is equals to A, EA is equals to EA। ठीक है, टेम्परेचर तो हम लोगों ने पहले से बोला T1 T2 है। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे हम लोगों की इक्वेशन बनेगी ln ऑफ K 1 is equals to ln of A माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। देखो ये समझ आ रहा है क्या, ऊपर हम लोगों की इक्वेशन थी ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी, तो हम लोगों ने बोला ln k1 इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी वन। एंड यहाँ पे हम लोगों की इक्वेशन बनेगी ln k1 सॉरी ln k2 इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। अब गाइस यूजुअली दो रिलेशनशिप के बीच में अगर हम लोगों को सॉरी दो इक्वेशंस के बीच में अगर हम लोगों को रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी टेक इट्स रेशियो, डिवीजन करते हैं। बट ओवर हियर वी आर यूजिंग लॉग, तो लॉग में जब डिवीजन रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो गाइस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, लॉग में जब डिवीजन रहता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे इनके नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो वो शॉर्ट में लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो गाइस ये कैसे होगा, ln ऑफ k2 माइनस ln ऑफ k1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस ln ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। देखो सब्ट्रैक्शन समझ आ रहा है, वी हैव सब्ट्रैक्टेड देम। एंड गाइस लॉग में जब सब्ट्रैक्शन करते तो अपने आप रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम ln ऑफ k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस, ये माइनस अंदर लेके चले जाओ, ln ऑफ a माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस ई ए अपॉन आर टी वन। अब गाइस ln a माइनस ln a कैंसिल आउट हो गए, तो व्हाट आई विल गेट ln ऑफ k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू, अब गाइस ये ई अपॉन आर जो है उसको साइड में कॉमन निकाल दो, तो ई ए अपॉन आर, देखो ये अपॉन आर को मैंने कॉमन निकाल दिया, डिवाइडेड बाय सॉरी डिवाइड बोल रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय, अब 1/T1 गाइस ये देखो ये प्लस में था ना, तो 1/T1 को मैंने पहले लिख दिया 1/T1 माइनस 1/T2। दिस इज आवर इक्वेशन, और ये सेम इक्वेशन इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने डिराइव की। देखो ये सेम इक्वेशन इक्विलिब्रियम में आई थी, बस उस टाइम पे हम लोगों ने ई ए के बदले डेल्टा एच यूज किया था, उस टाइम पे ई ए के बदले डेल्टा एच था। रेस्ट एवरीथिंग इज कॉमन, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, दिख रहा है क्या देखो। तो गाइस अगर इस इक्वेशन को हम लोगों को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत बार हम लोगों ने ln को लॉग में कन्वर्ट किया है, अभी तो इतना समझ में आना चाहिए कि ए अपॉन 2.303 आर। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो इट विल बिकम T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। देखो इक्वेशन एंड कंप्लीट दिस फास्ट। अब ये इक्वेशन हम लोगों ने सेकंड टाइम डिराइव की है एंड थर्ड टाइम लिखी है, एक बार थर्मोडायनेमिक्स में लिख के दी थी, एक बार इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने डिराइव की थी, एंड अभी हम लोग वापस इसको
केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 बार एक ही इक्वेशन हुई है, सेम इक्वेशन है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो होपफुली नाउ यू वोंट मिस इट। ओके गाइस, डन। हो गया। तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है? मैटर ही नहीं करता गाइस। तुम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला गलत लिखो बट वैल्यूज करेक्ट पुट करो। मतलब अगर तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में ये यूज किया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बस ए के वैल्यू के यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर देना, आंसर करेक्ट आने से मतलब है। दे वोंट मिक्स दीज टू टॉपिक्स, ठीक है। हम लोगों को मतलब दोनों टॉपिक्स मिक्स करके ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। मेंस लेवल पे तो एटलीस्ट है नहीं। Why did we take ratio of k2 by k1? Guys, log में जब subtraction होता है तो it means division, correct? चलो, लिख के हो गया। Go ahead now. Guys, next. Next is, let's take a question. And is find value of rate constant when temperature is tending to infinity. When temperature is tending to infinity. ये जी में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है guys, एंड एक्चुअली जेई में इसका ग्राफ पूछा गया था, ठीक है। जेई में इस क्वेश्चन का ग्राफ आया हुआ था एंड एट दैट टाइम शरद अख्तर करेक्ट आंसर है। उन्होंने ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक्स की थी, ठीक है। मतलब ग्राफ क्लियर थी, मेंशन नहीं किया था कि करेक्ट आंसर आने के लिए। ओके, चलो गाइस, रेट कांस्टेंट निकालना है गाइस, एलएन के नहीं, लोगों को के निकालना है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग अलग अलग इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। someone has given the correct answer but उसका नाम यहाँ पे नहीं है, तो I can't take his name. Rest all are giving wrong answers. तो guys देखो, a is equals to a into e raised to minus e a upon r d, ठीक है। अब guys टेम्परेचर अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, वो देखो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ। माइनस ई ए अपॉन आर डी, ठीक है। नाउ टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट 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 में डालते हैं,
ठीक है, बिकॉज लिमिट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे कुछ लोगों के लिए। तो ई ए अपॉन आर इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ गाइज माइनस ई ए, इन्फिनिटी को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो इन्फाइनिटी बनने वाला है। एंड गाइज किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो बनने वाला है 0। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यस, वही करेक्ट आंसर है। ये इतना पार्ट समझा गाइस, मतलब हम लोग डायरेक्ट लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल के इसको 0 बोल सकते थे, बट आई गेस ये हर एक को समझ में आ गया होगा। तो गाइस व्हाट विल हैपन, के इनटू के इज इक्वल्स टू ए इनटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। उसकी वैल्यू बन गई 0। एंड गाइस ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो के इज इक्वल्स टू। अब यार उन्होंने ग्राफ कौन सा पूछा था? उन्होंने ग्राफ ये ऐसा कुछ पूछा था, मतलब उन्होंने ग्राफ पूछा था। एंड ग्राफ कैसे आएगा गाइस, एक्सपोनेंट के ग्राफ कैसे जाता है? एक्सपोनेंट के ग्राफ कैसे जाता है? एक्सपोनेंट के ग्राफ कैसे जाता है? अपर पैराबोला, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस देखो, हम लोगों को उन्होंने ग्राफ पूछा था, जेई में जो क्वेश्चन आया था ये ग्राफ के ऊपर था, अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए थे। ठीक है, तो के ग्राफ वाज, ओके, वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, अब गाइस ये ग्राफ कैसे जाएगा फिर? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, हाँ, तो अभी इसका रिलेशनशिप मैं तुम लोगों को बाद में बता देता हूँ। अभी ये ग्राफ कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब कुछ लोगों को डाउनवर्ड हाइपरबोला लग रहा है, मुझे लगा ही था कुछ लोगों को डाउनवर्ड हाइपरबोला लगेगा, दैट इट शुड गो लाइक दिस। ठीक है, एंड उसका रीजन बिकॉज पावर माइनस में है। पावर माइनस में होगी तो यू माइट थिंक दैट इट शुड गो लाइक दिस, या फिर इट शुड गो लाइक दिस। ये ऐसा जाना चाहिए डाउनवर्ड हाइपरबोला, ये ऐसा जाना चाहिए, बहुत लोगों को लगेगा जी वालों में से। बट ये ग्राफ ऐसा जाने वाला है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर में दूंगा, डोंट वरी। बट दिस ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके वो शेप हो गया। तो दिस ग्राफ इज लाइक दिस, एंड जे में उन्होंने प्रॉब्लम, ये दिस वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कोई एक ऑप्शन था, ग्राफिकल क्वेश्चन था, एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। अब उन्होंने ये ग्राफ में ना लिमिटेशंस बहुत दी थी, मतलब बाकी के ग्राफ रॉन्ग थे, नो डाउट बाकी के ग्राफ रॉन्ग थे, बट ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज नाउ टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इट कैन गो टिल इंफिनिटी, बराबर। तो दे शुड हैव गिवन द लिमिट ओवर हियर, मतलब उन्होंने ना यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई नहीं करके रखी थी ग्राफ में, मतलब अकॉर्डिंग टू मी उनको ये डेटा देना चाहिए था दैट दिस इज द लिमिट ऑफ ग्राफ एंड लिमिट इज ए। तो ये लिमिट उन्होंने देके नहीं रखी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है गाइस? ये जो ग्राफ की लिमिट है, व्हेन टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, टेम्परेचर जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो दिस ग्राफ विल एंड एट ए। ये नहीं दिया था, तो अकॉर्डिंग टू मी ये डेटा देना जरूरी था। ठीक है, बट लेट बी, ना ना ये इतना, बट ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट था, बट आंसर तो यही, आंसर यही करेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। बट हाँ, कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो देयर वाज लिमिटेड डेटा, वी कैन ऑब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन, बट एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, क्या डिसीजन ले रहे हैं, जी वालों के आईआईटी के आईआईटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसने पेपर सेट किया है, बट स्टिल। ठीक है, ओके। अब ये ग्राफ ऐसे ऊपर क्यों जा रहा है और ये ऐसे नीचे? देखो, नेगेटिव जब रहती है वैल्यू तो ग्राफ ऐसा कुछ आना चाहिए, किसी ने तो नेगेटिव हाइपरबोला बोला था जो कि ऐसा आना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप ऑफ, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ई एंड की, इन सब के बीच का रिलेशन। गाइस पहले हम लोग टेम्परेचर के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर। अब हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई ए रेस टू माइनस, सॉरी, ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर। तो गाइस मुझे बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वन अपॉन टेम्परेचर, वन अपॉन टेम्परेचर डायरेक्ट क्यों, इतने छोटे नहीं है हम
ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी? गाइस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर यहाँ पे डिवीजन में है, डिवीजन में अगर वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर विल डिक्रीज। अब गाइस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू अगर कम होगी तो माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। वेरी नाइस, इट विल इंक्रीज। समझ आ रहा है? अब गाइस अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू, ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू, ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू वो भी बढ़ेगी। ऑब्वियस है ना गाइस? अगर पावर टर्म बढ़ रही है तो ओवरऑल आंसर भी बढ़ेगा। एंड गाइस अगर यही बढ़ गया तो के की वैल्यू चलेगा ना? के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। ए तो ए कांस्टेंट है, ठीक है, तो के की वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज। तो गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा तो के भी बढ़ने वाला है। तुम लोगों ने ये सिर्फ माइनस साइन नोटिस की, बट टेम्परेचर ये डिनोमिनेटर में है, ये हम लोग मिस कर रहे हैं। तो हेंस दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग पैरामीटर या फिर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये सबको ग्रास्प होने जैसा नहीं है। तुम लोगों को वापस एक बार ये लेक्चर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये लेक्चर, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम लोगों को डेफिनेटली समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। बट ये वाला ग्राफ थोड़ा सा कुछ लोगों को अभी भी डाउटफुल हो सकता है, ठीक है। मेक श्योर तुम लोग ये वापस एक बार देखो, ठीक है। एक टाइम में ये समझने ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बनाया एक्सेप्टेड, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है गाइस। नाउ गाइस लेट्स सी रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो गाइस अगेन फॉर्मूला इज k is equals to a into e raised to minus e a upon r t। Rashmi, I can't understand your question. I guess you are talking about this graph, yeah? Let's see. Okay. Now, guys, EA, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई तो ई ए अपॉन आर टी क्या होगा? ई ए अपॉन आर टी भी बढ़ेगा। तो गाइज माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या होगा? अगर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है तो नेगेटिव वैल्यू कम होती है। तो गाइज ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या होगा? ये अगर बड़े कम हो गई तो पावर वाली टर्म भी पूरी की पूरी कम हो जाएगी। एंड अगर गाइज ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी कम हो गया तो के क्या होगा? के भी कम हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो गाइज कंक्लूजन, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस? समरी इतनी है गाइज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। एंड अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, रिएक्शन को यार एक्टिवेट करने के लिए तुम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो के जो है वो कम होगा। एकदम कॉमन सेंस वाली चीज है ना गाइस। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होगा होगा तो रेट ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। बट अगर गाइस एक्टिवेशन एनर्जी, पहले से रिएक्शन को एक्टिवेट करने में ही बहुत ज्यादा एनर्जी अगर लग रही है तो रेट थोड़ा कम होगा। अगर रेट कम होगा तो रेट कांस्टेंट भी कम होगा। देखो ये एकदम कंसेप्चुअल है, बट थोड़ा सा मैथमेटिकल भी तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा करके दे दिया, ठीक है। ओके, चलो गाइस लिख दो, कंप्लीट दिस फास्ट। अगर तुम लोगों को भी एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई होगी तो हम लोग ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की ग्राफ्स कैसे आते हैं, बहुत अच्छे से। Let's move ahead.
गाइस नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब तुम लोगों को अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ये ऐसे ही ग्राफ्स तुम लोगों को बहुत सारे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, तो तभी ये कंसेप्ट तुम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम अ रिएक्शन इज हैपनिंग, ए ए बी, बहुत ऐसे हंसी खुशी जी रहे थे, इनके बीच में एकदम अटूट बंधन था, एंड इनकी पिक्चर में आ गया सी, ठीक है। गाइस सी को बी के साथ बॉन्ड बना रहा है। गाइस पहले से अगर कोई बॉन्ड है, पहले से अगर बी ने कोई एक बॉन्ड बना रही है, तो वो सी के साथ दूसरा बॉन्ड डायरेक्टली बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस देखो, हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अच्छे से देखना, हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी वर्सेस टाइम का, एनर्जी वर्सेस टाइम का, टाइम या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, कि यार रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ते जा रही है। अब गाइस एकदम बिगिनिंग में, एकदम बिगिनिंग में व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, ओनली रिएक्टेंट वाज देयर। तो गाइस रिएक्टेंट की एनर्जी में इधर की इधर कैसे मान ली, दिस वाज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, चलेगा, ठीक है। अब गाइस हुआ क्या, देखो ए और बी के बीच में एकदम मस्त वाला बॉन्ड था, बट अभी सी को बॉन्ड बनाना है। तो मुझे बताओ गाइस, सी को अगर बॉन्ड बनाना है तो सी बी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर पाएगा? कर सकता है, बट सी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते वक्त ए बीच में आने वाला है। तो गाइस सी किस मैनर में अटैक कर पाएगा, मुझे बताओ, ये इधर से अटैक कर पाएगा या इधर से जाके अटैक कर पाएगा? अटैक करेगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेस टू फेस अटैक करेगा या बैक साइड अटैक करेगा? फर्स्ट वन, ये ए की तरफ से तो अटैक नहीं करेगा, बी की तरफ से अटैक करेगा, एंड गाइस चुप चुप के अटैक करेगा, मतलब धीरे से अटैक होगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो देखो अगर तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों ने जैसे सी को अगर बॉन्ड बनाना है, तो ये ऐसे चुपके से बी को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा, इंस्टाग्राम पे इसने फॉलो रिक्वेस्ट सेंड की। अब बहुत सी बार बी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता, ए के साथ बहुत अच्छा वाला बॉन्ड था, करेक्ट। बट अगर बी ने फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो यार बी और सी के बीच में पहले ही दिन पे बॉन्ड बनने वाला है क्या? अगर बी ने सी की फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी तो पहले दिन बॉन्ड बनने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाइस पहले क्या होगा, बी और सी के बीच में एकदम माइल्ड इंटरेक्शन होंगे ना, समझ रहे हो? बी और सी के बीच में एकदम माइल्ड इंटरेक्शन होंगे, गुलू गुलू होगा, करेक्ट बोल रहा। एंड सिमिलरली गाइस ए और बी के बीच में, अब यार बी अगर सी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है तो ए के ऊपर कम फोकस होगा, मतलब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा। यू गेटिंग इट? आज सुबह में ये कंसेप्ट पढ़ाया गया है क्या? नाइस। गाइस धीरे धीरे ए और बी का बॉन्ड जो है वो वीक होते जा रहा है, व्हाई? बिकॉज बी इज नाउ इंटरेक्टिंग विद सी एंड ए बोथ एट वंस, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पोजीशन में बी इज स्टेबल और अनस्टेबल, व्हाट डू यू थिंक? इस पोजीशन पे बी इज स्टेबल या अनस्टेबल? इट इज अनस्टेबल। तो गाइस मुझे बताओ यहाँ पे एनर्जी बहुत कम थी, यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? एट दिस पॉइंट एनर्जी इज हाई या लो? बहुत बढ़ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई, समझ आ रहा है? तो देखो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी, इधर हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इधर से किधर की तरफ, ए और बी का बॉन्ड बी और सी के बॉन्ड के बीच में ट्रांजिट होते जा रहा है। अब गाइस ऑब्वियस है, अगर सी का इंटरेक्शन ए के साथ कम होने लग गया है तो ए को तो भनक पड़ जाएगी, कुछ तो गड़बड़ है, दोनों के बीच में झगड़े वगड़े होने स्टार्ट हो गए, एनर्जी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, और एक पॉइंट पे आके ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया, समझ आ रहा है?
एंड बॉन्ड किसके बीच में बन गया, बी और सी के बीच में। अब गाइस जैसे ही ए और बी का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बी और सी के बीच का बॉन्ड तो स्टेबल बन जाएगा, तो ये बॉन्ड हो गया स्टेबल। तो समझ रहे हो, एंड दिस इज आर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे दो अलग अलग एनर्जी डिफरेंसेस आने वाले हैं। देखो एनर्जी डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है, एक तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है। गाइस मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अरे याद है, एच पी माइनस एच आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया था ना, इट इज चेंज इन एंथैल्पी। एंड गाइस ये थी हम लोगों की ट्रांजिशन स्टेट, ये थी हम लोगों की ट्रांजिशन स्टेट जहां पे एनर्जी मैक्सिमम है। अगर गाइस इतनी एनर्जी मैक्सिमम रीच ही ना हो, मतलब क्या, अगर भी इंटरेक्शन ही ना करे या फिर सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट फॉलो रिक्वेस्ट ही ना सेंड करें, तो ये एनर्जी रीच हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। एंड इसे हम लोग बोलते हैं ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम लोग बोलते हैं ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। आर यू गेटिंग इट, ये समझा। अब गाइस इसी बदले, इसी बदले अगर ये रिएक्शन रिवर्स में जा रही है, देखो ये जो है ई ए दैट इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ई ए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बट अगर गाइस ये रिएक्शन रिवर्स में चली गई, रिवर्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रहेगी, अगर ये रिएक्शन रिवर्स में चली गई तो रिवर्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी किधर, मतलब अगर मैं उल्टा जा रहा हूँ तो उल्टा जाते वक्त एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रहेगी। तो गाइस उल्टा जाते वक्त मुझे इधर से, मतलब वापिस अगर ए को बी के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ए को बी के साथ बॉन्ड बनाते वक्त वापस उल्टा जा रहे हैं ना, तो इधर से इधर जाने के लिए हम लोगों को, वेरी नाइस नील करेक्ट बोल रहे हो, कृष्णा करेक्ट आंसर है, श्रेया करेक्ट आंसर है, सोम करेक्ट आंसर है। एक्चुअली मैं आंसर देख नहीं रहा था तुम लोगों के, तो ई ए एंड डेल्टा एच दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। वेरी नाइस गाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो ये रेड मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ। गाइस देखो ये वापस इतना गैप हम लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, उल्टा जाना है ना अभी, तो उल्टा इतना उधर तक लेके जानी पड़ेगी एनर्जी, पहले ट्रांजिशन स्टेट तक। ठीक है, उल्टा जाते हुए वापस ट्रांजिशन स्टेट तो अचीव करनी पड़ेगी। तो इतनी गैप जो है, जो मैं रेड में बना रहा हूँ, दैट इज ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्या इसे समझ आ रहा है कि देखो, दिस इज ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो गाइज ई ए डेल्टा एच एंड ई बी, ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसके बीच का रिलेशन क्या है, ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू ई ए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच। एंड गाइस इधर से तुम लोगों को डेल्टा एच का फॉर्मूला भी एक मिलेगा, देखो विच इज ओनली एप्लीकेबल इन केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन minus EA for forward reaction. But when this formula is applicable, there is another question that when this formula is applicable, this formula is applicable when, formula is applicable when, very nice Neil, correct बोल रहे हो, good, energy of reactant is greater than energy of product. Formula is applicable when energy of reactant is greater than energy of product. अब मुझे बताओ गाइस, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच ओवर हियर इज पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगी गाइस। यहाँ पे इस कंडीशन में डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव रहेगा, करेक्ट। अगर डेल्टा एच अगर गाइस नेगेटिव आ गया, डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो मुझे बताओ उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, exothermic, very nice, correct बोल रहे हो। So guys, this formula is applicable only for exothermic reaction. This formula is applicable only for
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो ये समझ आया क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो स्टेबल बनता है। देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, मींस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। दैट मींस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत हाई थी एंड प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, तो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू रिएक्टेंट। आर यू गेटिंग इट? गाइस बहुत सी बार कैसे होता है यार, अपने को पहले तो है ना जब फॉलो रिक्वेस्ट रहती है ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी बार कैसे होता है, हम लोगों को इनिशियल स्टेज में जब फॉलो रिक्वेस्ट आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि यार समवन इज इंटरेस्टेड इन अस, मतलब बी को बहुत अच्छा लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बी। ठीक है, तो यार बी सेम इंटरेक्शन करने स्टार्ट करता है, सेम एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होती है बिकॉज ए और बी के बीच का बॉन्ड वीक होता है। बट जब बॉन्ड बन जाता है ना बी और सी के बीच में, तब पता चलता है यार ए और बी के बीच का ही बॉन्ड अच्छा था। मतलब क्या? तो बी और सी की एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज हायर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये कंडीशन समझ में आ रही है? यार पहला वाला जो बॉन्ड था ना वही अच्छा था, एंड जो अभी नया वाला बॉन्ड बना है ना, मजा नहीं आ रहा है। Getting it? देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ प्रोडक्ट इज स्टेबल या अनस्टेबल? जो नया प्रोडक्ट बना है दैट इज स्टेबल या अनस्टेबल? इज अनस्टेबल, करेक्ट। देखो गाइस मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, समझने में तो बहुत अच्छे अच्छे लेसन भी देते हैं हम लोगों को कभी कभार। तो बोलते हो रिएक्शन रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में ही स्टेबिलिटी ज्यादा है, हम लोगों के लिए तो यही अच्छा है। तो गाइस ओवर हियर डेल्टा एच इज ईपी माइनस ई आर, एंड अब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज हायर, तो डेल्टा एच इज positive. And if delta H is positive, then we'll say it is a endothermic reaction. It has absorbed some energy. ठीक है, अब मुझे बताओ एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये चेंज हो गई क्या? बिल्कुल नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी इज स्टिल द सेम। एक्टिवेशन एनर्जी इज स्टिल द सेम। मुझे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन अब कितनी है? कुछ इतनी है। Now tell me what is the relationship between these two, these three: EA for forward reaction, EA for backward reaction, EA for and delta H. So guys, relationship is quite easy. EA for forward reaction is EA for backward reaction plus delta H. So guys, delta H will become EA for forward reaction minus EA for backward reaction. And this formula is applicable only when, this formula is applicable only when energy of reactant is less than energy of product, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो गाइस एक्सो और एंडो के लिए दो अलग अलग फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट इज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देखो गाइस मेरी तरफ से ये बहुत आराम आराम से मैंने पढ़ाया है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दीस टू ग्राफ्स। ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में भी यूज होता है, ये तुम लोगों को फिजिकल में भी यूज होता है। ये अभी इसके बाद हम लोग सरफेस केमिस्ट्री ड्रॉ चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए भी एप्लीकेबल है। एंड सेकंड ग्राफ इज, ओके गाइस, सेकंड ग्राफ इज फॉर दिस रिएक्शन ओनली, ये इसी रिएक्शन का ग्राफ है। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दो कंडीशन जिसमें ये ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो एक्सो है, मतलब पहला ग्राफ जो था दैट इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। पहला वाला जो ग्राफ मैंने पढ़ाया दिस इज फॉर व्हेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंड दूसरा वाला जो ग्राफ मैंने पढ़ाया दिस इज व्हेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब एग्जाम में थोड़ी ना तुम लोगों को हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही देंगे, दे माइट गिव अस एंडोथर्मिक रिएक्शन आल्सो। ठीक है, यप, एंड दीस टू ग्राफ रिप्रेजेंट्स SN2 रिएक्शन। जिन लोगों का ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है उन लोगों को SN2 रिएक्शन पढ़ाई गई है।
These two graph represents SN2 reactions. चलो guys, complete this fast. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एंड देन विल लर्न अबाउट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अरेंज इक्वेशन का, कि हम लोगों ने क्वेश्चन थोड़े से कम किए हैं. गाइस ये ग्राफ बार बार आएंगे, डोंट वरी. अगर इन ग्राफ में कुछ भी डाउट होगा तो ऑर्गेनिक में ये ग्राफ वापस आएंगे, और ऑर्गेनिक में ये और ज्यादा क्लियर होंगे. मतलब केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इस ग्राफ को ज्यादा हम लोगों को वेटेज देने की जरूरत है नहीं. ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर कुछ भी डाउट होगा तो लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन देके तो समझ ही लोगे, डोंट वरी. एंड फिर भी डाउट होगा तो ऑफलाइन में मैं जब मिलूंगा या फिर कॉल करके मुझे पूछ लेना. ठीक है, तो क्लियर कर लेंगे वो कॉल पे डाउट्स. Okay. Now, guys, next is rate constant of a reaction. Question is rate constant of a reaction at 27 degrees Celsius is 5 into 10 raised to 2, while at 120 degrees Celsius it is 5 into 10 raised to 4. Calculate EA for reaction. For reaction. अब guys ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है. कैसे करोगे? बहुत सिंपल है. हम लोगों का एक ही फॉर्मूला है, ई ए K1 K2 इन सबको रिलेट करने के लिए. देखो पहले टेम्परेचर T1 कितना दिया है 27. कृपया करके इसको 27 ना लें, 300 के लेवल में कन्वर्ट कर दो. टेम्परेचर है T2 127, इसे भी केल्विन में कन्वर्ट कर दो. K1 इनिशियल रेट कांस्टेंट is 5 into 10 raised to 2, and K2 final rate constant is 5 into 10 raised to. Reading it. So guys, log of K2 upon K1 equals to EA upon 2.03. Sorry, formula भूल गया था. EA upon 2.03 R into T2 minus T1 upon T1. ठीक है, दिस इज द वैल्यू. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. अब यहाँ पे ये जो है वो कैलोरीज में फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, फाइंड आंसर इन कैलोरीज. फाइंड आंसर इन कैलोरीज. ओके. अब गाइस अगर कैलोरीज में आंसर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? लॉग ऑफ 5 into 10 raised to K2 is 10 raised to 4 अपॉन 5 into 10 raised to 2 is equals to EA हम लोगों को फाइंड आउट करना है अपॉन 2.303 into 2 into T2. गाइस T2 कितना दिया है? T2 is 400 minus 300. The whole thing divided by 400 multiplied by 300. T1 into T2 करो या फिर T2 into T1 करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अब गाइस ये 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 10⁻² कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 10⁻² बचेगा. log of 10⁻², guys log of 10⁻² is 2 log 10. log of 10 is 1 EA अपॉन 4.6, इतना ही लिख देते चलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 4 0. ठीक है. अब गाइस ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज EA इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ लेके जाओ तो 4.6 into 2. देखो लॉग ऑफ 10 इज 1, तो ये सिर्फ 2 बच गया. 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.2 into 1200. ठीक है, इसने तो पहले से आंसर सेंड करके रखा है तो आई एम गोइंग टू यूज इट, विच इज 11,040. यूनिट क्या रहेगा? कैलोरीज.
गाइस आर हम लोगों ने 2 लिया था, कैलोरीज में है। अब गाइस एग्जाम में ये आंसर किलो कैलोरी में अगर पूछा हो तो तुम लोगों को क्या लिखना है? 11.04 किलो कैलोरी। दिस इज योर आंसर, नो डाउट। चलो कंप्लीट दिस, राइट इट डाउन, देन विल मूव टुवर्ड्स इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। कैटलिस्ट एग्जैक्टली करता क्या है? देखो ये ऐसे टाइप की क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी 2-3 सॉल्व किए हैं, एक दो तो सॉल्व किए ही थे, आज वापिस एक हो गया। एंड ऐसे ही तुम लोग देखते रहना, ठीक है? थोड़े बहुत क्वेश्चन तुम लोगों ने होमवर्क के थ्रू सॉल्व किए रहेंगे। लास्ट टाइम का गाइस होमवर्क सबको मिल गया था, सम पीपल वर सेइंग कि होमवर्क मिल रहा नहीं है गाइस। यस, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है गाइस, ठीक है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। बट कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इसे बढ़ाता है क्या? कल ही मिला है होमवर्क, यस ठीक है, चलता है। कल कल दिया था मैंने homework, मुझे याद नहीं मैंने कब दिया था। हाँ, रिटार्डर मतलब जो रिएक्शन को कम करते हैं, वो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? Nice. ठीक है कुछ लोगों ने। ओके, तो गाइस कैटलिस्ट कैटलिस्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत बार स्टडी किया है। हम लोग इसके बारे में प्रॉपरली स्टडी करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है? मतलब अभी ये चैप्टर होने के बाद विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन सॉल्यूशंस इज देयर, सॉल्यूशंस करके एक चैप्टर है, एंड देन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक अभी फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट increases rate of reaction by changing the mechanism slash, नहीं तो ब्रैकेट में लिखो, pathway of reaction during which EA decreases। गाइस देखो, मैं बताता हूँ, चलो एक अलग एग्जांपल से बताऊंगा, साइंटिफिकली लेकिन थोड़ा सा अलग एग्जांपल। ड्यूरिंग विच EA डिक्रीजेस, अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई गाइस, मुझे बताओ, अगर रिएक्शन को एक्टिवेट करने में ही अगर कम एनर्जी लग रही है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है? अब गाइस देखो एक सिंपल एग्जांपल, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है, ठीक है? और इसमें हम लोगों को ऐड करना पड़ा कैटलिस्ट। अब गाइस कैटलिस्ट का काम क्या रहता है? देखो पहले क्या था, विदाउट कैटलिस्ट बी को डायरेक्टली ए से अप्रोच करना था, ठीक है? बी को डायरेक्टली ए के साथ अप्रोच करना था, विच वॉज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट था? बिकॉज बी और ए के बीच में कांटेक्ट करने के लिए कुछ साधन नहीं था, ठीक है? अब गाइस हम लोगों ने ऐड कर दिया कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो कि बी और ए के बीच में कॉमन फ्रेंड है। हाँ सही बोल रहे हो। तो गाइज यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉमन फ्रेंड ऐड कर दिया हम लोगों ने कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब दोनों के साथ उसका बॉन्ड तो है, समझ रहे हो? एक नया अप्रोच, हाँ पुराने जमाने वाला प्रॉब्लम। अभी तो क्या हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन जाके स्टॉक कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, बट पहले जमाने वाला अप्रोच जब कोई एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती थी, आज के जमाने में भी पड़ती है बहुत सी बार। तो गाइज सी जो है, इट इज अ कॉमन फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड बिटवीन ए एंड बी,
एंड जिसकी वजह से सी ने ए को इंट्रोड्यूस करा के दिया बी के साथ, बी को इंट्रोड्यूस करा के दिया ए के साथ, एंड जिसकी वजह से इनके बीच में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन इजी हो गया। समझ रहे हो? एंड फिर कैटलिस्ट का काम खत्म। कैटलिस्ट ने इंट्रोडक्शन करा के दिया, फिर ए और बी ने अपना खुद का देख लिया, बॉन्ड बना लिया, एंड कैटलिस्ट भाई अपना म्यूचुअल फ्रेंड था, वो साइड में निकल गया किसी और के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो उनको समझ आ रहा है? ठीक है। तो गाइस, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई तो देखो क्या होता है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, फिर रिएक्शन बहुत स्लो जा रही है, बहुत टाइम लग रहा था रिएक्शन में। बट कैटलिस्ट आ गया तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। बाकी कुछ चेंज हो रहा है क्या गाइस? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट है वो इजीली अचीव हो रही है, उसके लिए जो एनर्जी लग रही है वो कैटलिस्ट से कम हो रही है। अरे ये समझ रहे हो? देखो कैटलिस्ट बाकी किसी भी चीज को कम नहीं करता, बाकी किसी भी चीज को चेंज नहीं करता। डेल्टा एच, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस चेंज होगा तो ये होगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट एंड विथ कैटलिस्ट डिफरेंट है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा थी, ये विदाउट कैटलिस्ट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। बट with catalyst what happens? With catalyst EA decreases। ये डैश with catalyst। ओके। टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट गाइस, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट। सॉरी, हाँ नहीं है ना पूरा, ट्रांजिशन स्टेट। ए और बी के बीच मतलब अलग अलग रह के पूरा मॉलिक्यूल बनने में जो ट्रांजिशन हो रहा है, पहले ए और बी में पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हुआ, बाद में कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म हुआ, धीरे धीरे ट्रांजिट होके जा रहा है, ट्रांजिशन चेंजेस आ रहा है, ट्रांजिशन मतलब चेंज। ठीक है, तो वो चेंजिंग स्टेट टीएस मतलब। ओके, तो ये लिख दो। बाय द वे बाकी ग्राफ है तो तुम लोगों को भी बताने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर ग्राफ जो हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, तो इस कैटलिस्ट की वजह से होता क्या है, ये ग्राफ याद है? बेल शेप ग्राफ। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी, या फिर एनर्जी पकड़ ली, चलो एनर्जी बोल देते हैं, अभी वेलोसिटी क्यों, हम लोग एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या था? तो गाइस पहले इनिशियली है ना एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी। पहले इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ह्यूज, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे, बहुत कम फ्रैक्शन था जिसके पास इतनी एनर्जी थी। बट गैस कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम किया। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की वजह से नाउ देयर इज अ ह्यूज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे ही डार्क करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ई ए एंड दिस इज ई ए डैश। तो गाइस व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट? पॉइंट्स लिख दो। कैटलिस्ट decreases activation energy, एंड बिकॉज ऑफ विच कैटलिस्ट अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having activation energy having EA increases, because of which rate of reaction increases। अब मुझे बताओ गाइस कैटलिस्ट डेल्टा एच को चेंज करता है क्या? डेल्टा एच रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कांस्टेंट। ये थियरी के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सारे के सारे थियरी के क्वेश्चन है।
एंड डेल्टा एच के साथ साथ ये मुझे बताओ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर रहा है क्या? नहीं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है क्या? नहीं। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। तो अब गाइस बट मुझे बताओ अगर ये चेंज हुआ के चेंज होगा कि नहीं? देखते हैं किस किस को ये समझ आ रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है तो के चेंज होगा कि नहीं? अगर ये चेंज हो रहा है तो के चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ऑब्वियसली। ऊपर जाके देखो, अब भी लिखा था ई ए इंक्रीजेस के डिक्रीजेस। ई ए अगर डिक्रीज होगा तो के इंक्रीज होगा, ये दिखा के दिया था। टेम्परेचर के साथ भी चेंज होगा एंड ई ए के साथ भी चेंज होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड के। ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा तो भी शायद से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। के वन इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन ई ए वन, इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी ई ए वन अपॉन आर टी, एंड के टू इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालने, रेशो ले लेते हैं। तो के टू अपॉन के वन, के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई ए वन अपॉन आर टी अपॉन ए ई रेस टू ए ई रेस टू माइनस, सॉरी ये टू ऊपर आना चाहिए ना, ए टू के टू ए टू अपॉन आर टी अपॉन ए रेस टू ए ई रेस टू माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। अब गाइस ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब तुम लोगों को पता है ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम माइनस एन। तो ये कर दो। अब ये माइनस का ऊपर जाके माइनस अगर करोगे तो प्लस बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो यू विल गेट के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ई ए टू अपॉन आर डी प्लस ये वन अपॉन आर टी। गाइस ये वन और ये टू, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई रेस टू ई ए वन प्लस ई ए, सॉरी प्लस क्या लिख रहा हूँ, माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे एल एन ले लिया तो एल एन ऑफ के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू एल एन और ई कैंसल आउट हो गए, ये वन माइनस ये टू अपॉन आर टी। देखो एंड लिखो, सिंपल था। थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स था इस चैप्टर में, तो आ ही गया होगा तुम लोगों को मैथमेटिकल चैप्टर तो थोड़ा सा, बट इट वाज क्वाइट इजी। ठीक है। तो गाइस राइट इट डाउन, कंप्लीट दिस, एंड with this we can declare that this chapter is over. Okay. Yep, this chapter is over, and I think we should stop now because only half an hour is there, so we can't start a new chapter. So we'll stop over here. एक दिन तुम लोगों को जल्दी छोड़ता हूँ, चलो। Till then, see you next time. Bye and God bless you. In next lecture, we'll start with electrochemistry. Start with electrochemistry. Okay. So guys, chalo. Bye. Bye everyone. Bye bye.